हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ एग्जाम की क्लास ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ठीक है, इतना कर लिया सी। उस तो बाद टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये सारियां डायरेक्ट टैक्स दी टाइप्स ने, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ वन ਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਓਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ एग्जाम की क्लास ऐप डाउनलोड कर लियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ PDF ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਓਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू अर्न करती है, जो प्रॉफिट या रेवेन्यू अर्न करती है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ, ठीक है। टैक्स स्लैब बना रखे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ समझ आ गया। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਚ, सब तो वध रेवेन्यू किस चीज तो होया सरकार ਨੂੰ? इनकम टैक्स तो, कॉर्पोरेट टैक्स तो, या फिर इन्हां विचों या GST तो, ठीक है। सब तो वध जो सरकार होया वो GST तो होया। GST ने सब तो वध पैसा दिता, उस तो नीचे कॉर्पोरेट टैक्स ने दिता, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इदां दे क्वेश्चन भी आंदे आ, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने कि मतलब तुसीं बेसिक्स पढ़ लिया, उस तो बाद तुहानूं जिद्दां मैं कहंदी एडवांस लैवल, इहनूं एडवांस लैवल कहंदे आ क्यों? तुसीं डायरैक्ट टैक्स इनडायरैक्ट तुहानूं पता, ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਇਆ? GST ਤੋਂ ਆਇਆ। GST ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ 15%। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? 2022 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 18%, ਪਹਿਲਾਂ 18% ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ? 15%, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बुक्कां में तुहानूं हजे भी 18% मिलूगा, इस करके तो इसलिए कहनी है अपडेशन जरूरी है। करंट अफेयर पढ़िया करो क्योंकि डेटा चेंज होंदे रहंदे हैं, ओके। पहला 18% ही, हुण जून 22 तो किन्ने दा 15% ते है, ओके। इस करके 15% 80% लाओगे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड की होंदा, ठीक है। डिविडेंड ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ, ठीक है, अपने जो शेयर होल्डर्स ने उन्होंने डिविडेंड दिंदी है, ठीक है। डिविडेंड दिंदी, डिविडेंड की होंदा ਜਦੋਂ कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है,
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ? ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ओके, समझ आ गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंदर? ऑलराइट, कोई समझ नहीं आता तो पूछ लियो, मैं नेक्स्ट टाइम समझा दूंगी। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स लगता जो सेल ऑफ कैपिटल, सेल ऑफ कैपिटल। कैपिटल केड़ी हुंदी? जिवें प्रॉपर्टी, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ प्रॉपर्टी ਦੀ सेल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ टैक्स लगदा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ये दो तरह का ਹੁੰਦਾ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ਹੁੰਦਾ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ਹੁੰਦਾ। बाद ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ डिटेल ਪੜਾਂਗੇ। बस इन्ना याद रखना कि ਇਹਨੂੰ कैपिटल गेन टैक्स ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? जो प्रॉपर्टी जो ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टैक्स ਲੱਗਦਾ। और एक गल होर याद करनी, मान लो कि ਤੁਸੀਂ पिछले साल 2020 ਵਿੱਚ प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, मतलब ਉਹਦੀ ट्रांसफर की किसी होर ਨੂੰ, ओनरशिप ट्रांसफर करती किसी होर ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ओनरशिप ट्रांसफर करती, बट वो प्रॉपर्टी ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मिले है 2021 ਵਿੱਚ, ठीक है, 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पैसा मिलिया ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल ਜਿਹੜਾ गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स कब ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ लगूगा? 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे रिसीव हो गए ਜਾਂ पैसे ट्रांसफर हो गए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ट्रांसफर की, चार्ज की कि हाँ कि मैं इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराती है, स्टैंप ड्यूटी जो भी मतलब लाते पेपर वर्क कर लिया, ठीक है, उदों नहीं ਤੁਹਾਡਾ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा हो गया सेटलमेंट, पैसे ट्रांसफर हो गए, फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, जो पैसे ਤੁਸੀਂ कमाए उदों जो टैक्स लगेगा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कैपिटल गेन टैक्स। ओके, नेक्स्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इतने सिक्योरिटीज किन्नू किया गया है? जिन्हें भी स्टॉक मार्केट में तुसी शेयर खरीदते हो, शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, शेयर डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड, बॉन्ड्स, ये सारी की ने सिक्योरिटीज। ਜਦੋਂ भी ਇਹ सिक्योरिटी ਦੀ ट्रांजैक्शंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक्सचेंज ਹੁੰਦੇ ਆ, ट्रांजैक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक्सचेंज ਹੁੰਦੀ, शेयर ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पैसे रिसीव ਹੁੰਦੇ ਆ, पैसे मनी रिसीव ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ टैक्स ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, समझ आया? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो एक्सचेंज ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ट्रांजैक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ठीक है, नेक्स्ट है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की ਹੁੰਦਾ? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ कमोडिटीज ਤੇ कमोडिटीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? कमोडिटीज डेरिवेटिव्स, ठीक है, इन्हों पूरा कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स की कोई भी प्रोडक्ट्स जिवें ऑयल, ठीक है, प्रॉपर्टी, ऑयल, प्रॉपर्टी, ज्वैलरीज वगैरह, ठीक है, वो होंगे कमोडिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो इन्हों सेल परचेज होंदा, जो इन्हों का सेल एंड परचेज होंदा, ठीक है, कमोडिटीज में मतलब जो भी चीज़ां तुसी खरीदते हो बेचते हो, बट हाँ ये स्टॉक मार्केट नहीं होंदी, जिवें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज नहीं आंदियां, स्टॉक मार्केट नाल रिलेटेड जी चीज़ां वो नहीं आंदियां। जां तुसीं कोई पर्सनल यूज लिए कोई चीज़ खरीदी, पर्सनल यूज की जिद्दां मतलब ज्वैलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, इस सारी चीज़ां तुसीं खरीदियां जी बेचियो, उत्ते टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऑयल, प्रॉपर्टी, ये तो अलावा जेड़ियां, ठीक है, उन्हां ते जे नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, इनू सिंपल जिन्नियां भी नॉन एग्रीकल्चर होणगियां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नू छड्ड के खेतीबाड़ी दे जेड़े भी समान है, ठीक है, उन्हां नू छड्ड के
बाकी जिन्ना भी समान है ठीक है उन्हों का जिन्ना भी खरीदिया बेचा जाएगा उत्ते जो टैक्स लगेगा ठीक है उन्होंने कहांगे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ठीक है उन्होंने जो टैक्स लगेगा ट्रांजैक्शन से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नूं छड्ड के नॉन एग्रीकल्चर ओके इत्थे पॉइंट है जरूरी है याद करना। नैक्सट फ्रिंज बेनीफिट टैक्स गिफ्ट टैक्स इन्हां दोवां नूं अबॉलिश हो गया हुण नहीं है दोनों खत्म है ठीक है फिर भी तुहानूं पता होना चाहिए फ्रिंज बेनीफिट टैक्स हुंदा वा जदों कंपनी अपने इंप्लॉयज नूं जो कंपनी अपने जो कर्मचारी है उन्होंने बेनीफिट दिंदी है ठीक है सैलरी ते कंपनसेशन नूं छड्ड के ठीक है हुण सैलरी ते कंपनसेशन ये तो उन्होंने मिलना ही है सैलरी ते कंपनसेशन तो उन्होंने मिलना ही है। इस तो अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों नूं बेनीफिट्स दिंदी है जिदा मान लो किसी नूं हॉलीडे पैकेज देता ठीक है और ट्रैवल दा मतलब ट्रैवल फीस देती तो किसी को मैंबरशिप देती किसी क्लब की इस तरह के जो बेनीफिट्स दिंदी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो टैक्स लगता ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रिंज बेनीफिट टैक्स जो कंपनी अपने कर्मचारियों को बेनीफिट्स दिंदी है सैलरी के कंपनसेशन नूं छड्ड के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो टैक्स लगता ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रिंज बेनीफिट टैक्स ठीक है। गिफ्ट टैक्स भी अबॉलिश हो ये दोनों खत्म हो चुके हैं ठीक है। गिफ्ट टैक्स जो किसी को गिफ्ट देने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो टैक्स लगता। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोफेशनल टैक्स लैंड रेवेन्यू स्टैंप रजिस्टर प्रॉपर्टी टैक्स ये सारे स्टेट टैक्स ने जो स्टेट कलेक्ट करती है ठीक है। और ये ऊपर वाले सारे की से यूनियन जो सेंटर कलेक्ट करती है सेंटर टैक्स ठीक है। सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स ओके। और जीएसटी दोनों एक अच्छा अगर तुम पूछ ले जीएसटी केड़े सब्जेक्ट में आता ठीक है। जीएसटी जेडे जिदा सेंटर के तीन लिस्ट है ना एक यूनियन लिस्ट है दूसरी स्टेट लिस्ट है थर्ड कंकरेंट लिस्ट है। जीएसटी जेड़ा वा कंकरेंट लिस्ट में आता याद रखियो ठीक है। इसे करके मतलब कट्ठे काम करन दे उत्ते ओके। अगर तुहानू पूछ ले कोई एग्रीकल्चर टैक्स मंडी टैक्स या फिर ये सारे टैक्स ये किहदे विच आउंदे ये सारे आउंदे स्टेट लिस्ट विच इहदे उत्ते टैक्स सिर्फ स्टेट लगा सकदी। अगर तुहानू पूछे लिक्विड जेहड़े शराब दे ठेके है ठीक है उन्हां दे टैक्स कौन ला सकदी सिर्फ स्टेट ठीक है। स्टेट को मैक्सिमम जिहड़ा आंध्र प्रदेश है महाराष्ट्र बहुत सारे स्टेटां वा जिन्हां सब तो वध पैसा शराब के ठेकिਆਂ तो ही हुंदा वा ठीक है। तुसीं देखिआ जो लॉकडाउन से उदों उन्होंने स्कूल नहीं खोले शराब की दुकाना पहला खोलती सी और इन्ना करोड़ों च प्रॉफिट होया सी स्टेट्स नूं ते इस करके स्टेट हाले तक जीएसटी के अंडर नहीं आया गा ठीक है। ये हाले तक स्टेट टैक्स ही है स्टेट ही कलैक्ट करती स्टेट अलग स्टेटां नूं अलग चीज़ों तो फायदे होंदे जीएसटी के अंडर ते जो जिहड़े फायदे होने हैं उस तो अलावा एग्रीकल्चर टैक्स मंडी एग्रीकल्चर टैक्स हाले लगा नहीं मंडी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जो शराब के ठेकिਆਂ ਦਾ लिक्विड टैक्स अल्कोहल शराब के ठेकिਆਂ ਦਾ टैक्स ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जो स्टेट्स है ना उन्होंने ये तो बहुत पैसा होंगे ओके ठीक है। ये किहड़े सब्जेक्ट स्टेट एग्रीकल्चर जिहड़ा है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है ठीक है। तो इस करके स्टेट टैक्स लगाती है तो लिक्विड जो शराब के ठेके वो स्टेट सब्जेक्ट लेकिन पर जीएसटी है वो कंकरेंट लिस्ट में आता ओके। एग्रीकल्चर टैक्स समझ आ गया। एग्रीकल्चर टैक्स वैसे जो इनकम टैक्स एक्ट है ठीक है जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 ਉਹਦੇ अंडर हाले तक मतलब कि एग्रीकल्चर टैक्स ਜਿਹੜਾ नहीं लगता हाले तक एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता बट इसके उत्ते गल चल रही है कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे अमीर किसान भी ने जिन्होंने 200-300 एकड़ तक जमीन है उन्होंने भी इस चीज़ का प्रॉफिट होता है उन्होंने टैक्स नहीं देना पैंदा इस करके उन्होंने कहा कि इससे भी विचार चलन दिया कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लाया जाएगा इसकी भी लिमिट तय की जाएगी। अगर एग्रीकल्चर टैक्स लगता तो फायदा किनू स्टेट नूं होएगा क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता ठीक है। और किहड़े शेड्यूल में आता 7 शेड्यूल में जिस लिस्ट है 3 लिस्ट है पॉलिटी का टॉपिक है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट ओके। लैंड रेवेन्यू टैक्स की हुण जिहदा प्रॉपर्टी है ठीक है प्रॉपर्टी का जिहड़ा टैक्स देना पैंदा वा म्यूनसिपैलिटी नूं क्योंकि वो तुहानूं पानी की सुविधा दिंदे क्लीनिंग सीवरेज सिस्टम सारिਆਂ दी केयर करते रोड स्ट्रक्चर वगैरह की तो उन्होंने भी टैक्स चाहिए तो प्रॉपर्टी ओनर नूं जिहड़ा टैक्स देना पैंदा ठीक है। उस तो बाद
ਸਟੈਂਪ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੈ, तो पूछ सकते हैं कि स्टैंप इंडिया में स्टैंप पंजाब में स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लगती है। अगर तुहानू पता है तो प्लीज़ तुसी कमेंट सैक्शन च जरूर दस्सिओ कि पंजाब में स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी कितनी लगती है, मतलब इन्हां ते कितना परसेंट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, अर्बन एरिया, ये भी स्टेट सब्जेक्ट, ओके। समझ आ गए सारे पॉइंट्स, इन्ना तुसी बस वन लाइनर च याद रखना। बाकी इन्हां विचों किहड़ा न्यूज़ विच सी कि इहदे विच चेंजेस होए वो भी असीं अगे जाके करांगे। बेसिक्स ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿक्स ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਕਸ ਔਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ, ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗਾਫਾ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ यूट्यूब हो गई, गूगल हो गई, एमेजोन, ठीक है, एमेजोन आईफोन वगैरह, ठीक है, इन्हों की जी कंपनी यूट्यूब एमेजोन, ठीक है, इन्हों के जो ये डिजिटल इकोनमी तो पैसे इकट्ठे करते हैं इंडिया जाके, डिजिटल इकोनमी तो जो प्रॉफिट अर्न करते हुण फॉर एग्जाम्पल क्यों यूट्यूब है, यूट्यूब बाहर की कंपनी है। पहला की हुंदा सी, हुण यूट्यूब चलदी उहदे उत्ते एडवरटाइजमेंट होंदी, अलग-अलग कंपनियां दी अलग-अलग प्रोडक्ट्स की एडवरटाइजमेंट होंदी सी, ते एडवरटाइजमेंट दे जिहड़े पैसे मिलदे सन, ठीक है, वो मिलते सी यूट्यूब नूं मिलते सी, जो भी एडवरटाइजमेंट उहदे पैसे मिलते सी यूट्यूब नूं, ठीक है। पहला ते कोई टैक्स नहीं लगदा, सरकार नूं कोई फायदा नहीं हुंदा। फिर सरकार नूं लगा कि नहीं इत्ते भी टैक्स लगना चाहिए, इस करके उन्होंने लाया गूगल टैक्स, इक्वलाइजेशन या गाफा टैक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि डिजिटल इकोनॉमी ते जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उत्ते जो प्रॉफिट कमाया जाता गूगल द्वारा, क्योंकि गूगल से भी देखिए तो एडवरटाइजमेंट आंदियां रहिंदियां, अगर तुसीं किसी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो बार बार नोटिफिकेशन होता रहता, ठीक है, वो एडवरटाइजमेंट दे दे, उस एडवरटाइजमेंट इन्हां नूं पैसा मिलदा, तो उस पैसे के उत्ते टैक्स लाउंदी है इंडियन सरकार, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने कहते। ये नहीं सिर्फ इंडिया च लगता, बाहर भी लगता है टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैं समझाता, ठीक है। एंजल टैक्स, पहला एंजल की हुंदा, एंजल हुंदे आ जिहड़े बिजनेसमैन, वड्डे बिजनेसमैन, ठीक है, जिन्हां दी नैटवर्थ बहुत है, जिन्हां को बहुत पैसा है, तो वो की करते हैं कि जिहड़ी कोई नवी कंपनी है, कोई स्टार्टअप है या स्मॉल या मीडियम स्केल कंपनी है, स्मॉल या मीडियम स्केल कंपनी है, तुसीं सुनिया होना कि तुहाडे कोल अगर आइडिया है तो तुहाडा आइडिया विकदा, करोड़ां च विकदा। अगर तुहाडे कोल कोई आइडिया है, जिद्दां मान लो कि जोमैटो है, ठीक है, जोमैटो है, स्विगी है, पहला इदां दा किसी को आइडिया नहीं सी, इन्हां ने आइडिया लिआंदा कि रेस्टोरेंट क्यों खाना, घर जाके ऑनलाइन डिलीवरी का आइडिया इन्हां ने लिआंदा, उहदे करके ये स्टार्टअप है, ज़्यादा पुरानी कंपनियां नहीं हैगियां, ते इन्हां ने स्टार्टअप किया, हुण प्रॉफिट विच है, ते एक आइडिया ही है। ते ये जो हुंदे एंजल हुंदे वड्डे बिजनेसमैन हुंदे, रिच बिजनेसमैन, ठीक है, जिन्हां दी बहुत ज़्यादा मतलब नैटवर्थ हुंदी है, ये की करते हैं कि जिहड़ियां नवीं स्टार्टअप कंपनी ने, ठीक है, इन्हां नूं फंड दिंदियां, इन्हां नूं पैसा दिंदियां, अपना पैसा जो जिहड़े वड्डे बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनियां दे विच, ठीक है। जिवें जोमैटो मान लो, वो जोमैटो ने अपना आइडिया लिआंदा सी कि असीं फूड डिलीवर करांगे घर घर, तो उन्होंने फंडिंग चाहिए होगी, तो इहो जिहे वड्डे वड्डे बिजनेसमैन नाल कॉन्टैक्ट करते, मीटिंग करते हैं, तो उन्होंने कहते कि सानूं फंडिंग दे दो, ठीक है, बाद च उहदा प्रॉफिट इन्हां नूं भी हुंदा अगर उन्होंने आइडिया पसंद आता, ठीक है। तो इस तरह ये होंगे एंजल इन्वेस्टर, ओके। हुण जो ये स्टार्टअप कंपनियां नूं पैसा मिलिया, ठीक है, जिहड़ियां स्टार्टअप कंपनियां सी इन्हां नूं जो पैसा मिलिया, इन्हां नूं जो फंड मिलिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सरकार टैक्स लगाएगी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ है एंजल टैक्स, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ एंजल टैक्स कहते हैं। अगर कोई फंडिंग मिलती है, जो इन्होंने स्टार्टअप कंपनियों में जो फंडिंग मिलती है, ठीक है, अगर वो जो मार्केट की फेयर वैल्यू है, अगर वो वैल्यू के नालों ज़्यादा, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू
फिर मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा इन्हों फंडिंग मिलती है, वो वैल्यू ज़्यादा फंडिंग की, ठीक है। तो फिर उन्होंने की लगेगा, एंजल टैक्स लगेगा, ठीक है, समझ आ गया। नैक्सट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समझाता। हम फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शनों के टैक्स लगते, जिमें कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, कॉमोडिटी हो गया, ठीक है। एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स भी है, जो तुम एक बैंक तो दूसरे बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उत्ते जो टैक्स लगता उन्होंने कहते बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। टोबिन और रॉबिनहुड टैक्स, ठीक है, एक टर्म है, इतना होर भी कॉन्सैप्ट है, वो बारे भी असं पढ़ांगे, जो टैक्सेशन में डायरैक्ट टैक्स और इनडायरैक्ट टैक्स, जो सिंपल तुम सब कुछ जानते हो, जीएसटी जानते हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इस तो अलावा होर भी टर्म्स ने टैक्सेशन, वो बारे भी असं पढ़ांगे, ठीक है। टोबिन टैक्स और रॉबिन टैक्स, टोबिन टैक्स और रॉबिन टैक्स की होंगे वा, ये लिया गया सी जेम्स टोबिन द्वारा, अमेरिका के इकनॉमिक्स सी जेम्स टोबिन। मान लो कि कोई बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने दी, ठीक है, शॉर्ट टाइम कैपिटल फंड कर रही, शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर कर रही, मतलब कि जिदा जो मैं पढ़ते हो फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, बाहर के मतलब कंपनियां ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडियन इकोनॉमी में पढ़िया ही कि मतलब बाहर की कंपनी जो इंडिया अपना हैडकुआटर बना लेंदियां वा, मतलब किन्ने 10-10 साल तक इतने रहिंदियां, उहदे फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जेडे इंडिया च रहते। एक होंगे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जेडे इंडिया च अपने हैडकुआटर नहीं बनाते, अपने स्टार्टअप मतलब जिदा कंपनीज नहीं बनाते, बस ये है कि उन्होंने पता इंडिया के शेयर है, ये इन्वेस्ट कर देंगे हो, ठीक है, वो मतलब अपनी कोई कंपनी नहीं बनाते, सिर्फ शेयर खरीदते इंडिया के। तो की होंदा वा कि जो इन्होंने इंडिया के मतलब इन्होंने इंडिया के शेयर तो इन्वेस्ट किया, मान लो कि इंडिया की थोड़ी कंडीशन मतलब पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, दंगे दुंगे हो गए कि अशांति फैली, तो इन्होंने की किया अपने सारे वापस ले ले, ठीक है, वो इंडिया का नुकसान होया करंसी, क्योंकि ये करंसी एक्सचेंज होंगी है, करंसी एक्सचेंज होंगी है, मतलब डॉलर के बदले रुपी या रुपी के बदले डॉलर होंगे। हुण मतलब ये कि ये फॉरन पोर्टफोलियो जो शॉर्ट टाइम भी शेयर खरीदते इंडिया के, ये फायदा भी बहुत देंगे है, सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना में भी बहुत बड़ा नुकसान होया सी ये करके कि ये मतलब जो छड्डदे आ नुकसान भी होंदा, क्योंकि वोलाटाइल है, इन्होंने फिक्स नहीं है, ठीक है, इनकी कोई कंपनियां नहीं चल रही, इन्हें सिर्फ शेयर खरीदने, जो नहीं पसंद आए तो बेच देने और वापस चल जाए, वो करके जी पिछे जी देश रह जाता जिथे इन्होंने इदा किया उत्थे नुकसान हो जाता। इस करके टोबिन टैक्स जो जेम्स टोबिन ने बोलिया कि मतलब कि तुसी जेड़ा करंसी एक्सचेंज करते हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ी बहुती पेनल्टी रखो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान हो, पेनल्टी मतलब टैक्स रखो, ठीक है। मान लो कि कोई इंडिया, ठीक है, इंडिया में कोई बाहर का किसी ने शेयर खरीदा, कोई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उन्हें इन्वेस्ट किया तो उन्हें अपने 100% शेयर इन्वेस्ट किए, अगर वो छड्ड के भी जाता अचानक, ठीक है, छड्ड के भी जाता उन्हें लगा कि नहीं जरूरी है, तो वो इंडिया की करंसी नुकसान ना हो, इस करके इंडिया का 30% अपने को रखेगा, 70% ही वापस मोड़ेगा, ठीक है, ये है, समझ आया। टोबिन टैक्स और रॉबिनहुड टैक्स कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एकदम नुकसान ना पहुंचे, अगर कोई फॉरेन की कंपनियां जो सिर्फ शेयर मार्केट च इन्वेस्ट करती है वो एकदम छड़ जाती है, उन्होंने वजह जो नुकसान होता, ठीक है, उस नुकसान को थोड़ा झलने लिए मतलब टैक्स लगना चाहिए, ठीक है, जरा इदा मतलब 70% 30% अपने को रखना उन्होंने कहते, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट ओके जी, तो मैं तुहानू सब तो बोलिया सी कि बजट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे सब तो पहला जो टैक्स कलैक्शन हुई, सब तो वध रेवेन्यू, सब तो वध पैसा या प्रॉफिट किस टैक्स ने दिता है, जीएसटी ने, फिर सैकंड नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स, फिर थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इकट्ठे। ओके, इस तरह भी तुहानू क्वेश्चन आ सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। उस बाद नैक्सट पढ़ांगे इनडायरैक्ट टैक्स, उस तो पहला असीं क्वेश्चंस करांगे, ठीक है, हुण असीं डायरैक्ट टैक्स पढ़ लिया, हुण असीं क्वेश्चन करांगे, इस तो बाद एक क्वेश्चन करन तो बाद असीं फिर करांगे, फिर असीं दोबारा इनडायरैक्ट टैक्स बारे पढ़ांगे। ओके, डायरैक्ट टैक्स पढ़िया, हम क्वेश्चन करांगे, 2 क्वेश्चन करते हैं, टाइम हो चला, नैक्सट लैक्चर में असीं क्वेश्चंस और क्वेश्चन करांगे, फिर इनडायरैक्ट टैक्स समझावांगे, फिर मैं जीएसटी समझावांगे, ब्रीफ विच ज़्यादा डिटेल च नहीं, मतलब जिद्दां तुहानू समझ आ जाए। ओके, एक क्वेश्चन हुणे कैपिटल गेन टैक्स होने पढ़िया सी, कैपिटल गेन टैक्स की हुंदा, कैपिटल गेन टैक्स होने 2 टर्म्स है, ठीक है, एक तो सिंपल पता कैपिटल गेन टैक्स की हुंदा, तो इतना लेटर क्वेश्चन कितना आऊगा, कैपिटल गेन टैक्स आर नॉट एप्लीकेबल टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज देयर इज नो सेल ओनली अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप,
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ मतलब कि 25 किले ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 25 किले ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ मतलब ਮੇਰੇ ਕੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ है। इस करके स्टेटमेंट की है सही है। दूसरी है इफ द पर्सन who inherited the asset decided to sell to gain the tax will be applicable, ठीक है। ਇਹ क्वेश्चन कहना गया कि अगर मेरी खानदानी जमीन है जिदा तो मैं चाहवा किसी होर ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ फिर टैक्स लगेगा, ओके। इससे दोनों स्टेटमेंट की ने सही ने, समझ आया। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स है जेड़ा ओ मतलब उस अगर जी तुहाडी प्रॉपर्टी है जो तुहाडी खानदानी जमीन है अगर तुहाडे खानदान च ट्रांसफर होंदी है रिश्तेदारी विच मतलब तुहाडा खून का रिश्ता है या फिर वो बंदा खुद ट्रांसफर कर रहा है कि मेरी खानदानी जमीन है मैं इन्हां नूं ट्रांसफर कर रहा फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स की है पिछे मैं समझाया सी, ठीक है। बट अगर मान लो मेरी खानदानी जमीन है मैं किसी बाहर के बंदे नूं ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, उदों मैनूं प्रॉफिट होंदे फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ओके। समझ आया। ये हुंदा है कि तैयारी करनी पहला तुसीं कॉन्सैप्ट पढ़ो फिर उस तरह के किदां दे होर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तुहानूं मतलब इहो जिहे क्वेश्चन ट्रिकी हुंदे हैं, इदां दे क्वेश्चन तुसीं करोगे ईजी क्वेश्चन तो तुसीं सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। इसलिए टफ लैवल लैके भी चलो अपने आप को टफ बनाओ, ठीक है, थोड़ा मतलब लैवल अप करो ताकि अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आता तुसीं फिर भी एक मतलब एक एग्जाम क्लीयर कर सको शॉर्ट लिस्टेड हो सको क्योंकि जिद्दां तुहानूं पता है पोस्टां बहुत घट आउंदियां वा 100 आउंदियां 78 आईयां सी जां वध तो 150 पोस्टां जां 170 मतलब 100 200 तक पोस्टां नहीं आउंदियां। हुण कंपीटीशन भी उदां ही वध जाएगा कि रिजर्वेशन कैटेगरी भी है, ठीक है। इस करके अगर तुसीं टॉप ते मार्क्स लैने ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब मनना पएगा कि इस एग्जाम च मन पहला तो ही मन के जाया करो, ये ना सोचा करो कि मैं मैथ रीजनिंग कर लूँगा जीएस छड़ दूंगा मैं जीएस कर लूँगा मैथ रीजनिंग छड़ दूँ। ये मन के चलो कि अगर 100 ਦੇ 100 क्वेश्चन आते तो मैं 100 ਦੇ 100 क्वेश्चन कर सकदा मैं कर सकती मैं 100 ਦੇ 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। मैं जीएस भी मेरा तैयार है मैथ भी तैयार है रीजनिंग भी तैयार है मेरे कॉन्सैप्ट क्लीयर है, ठीक है। कॉन्सैप्ट मतलब इस तरह क्लीयर है कि अगर थोड़ा जिहा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए फिर भी वो क्वेश्चन सही कर सकदा, ठीक है। इस तरीके नाल अपना मतलब कि एग्जाम की तैयारी करिया करो, ओके। बाकी असीं क्वेश्चन नैक्सट असीं करांगे नैक्सट क्लास में करांगे, ओके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो।